Hello friends, welcome to Siddhi Punjab. So today we are going to discuss the current affairs of 23rd and 24th May. All the current affairs that are important for our Punjab PCS examination that we are going to discuss here, right? आगे बढ़ने तो पहला please like, share and subscribe the channel with as many aspirants as you can, right? ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਕੰਟੈਂਟਸ ਟੌਪਿਕਸ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਟੌਪਿਕਸ ਹੈ, ਲਿਸਟ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਬਟ ਦ ਟੌਪਿਕਸ ਆਰ ਸਮਾਲ, ਇਟ ਵੋਂਟ ਟੇਕ ਮਚ ਟਾਈਮ, right? Some are repeated also, we have already discussed, so I'll provide just the link, right? Then first topic ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ UN reforms ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕੋਈ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। This statement can be helpful while writing answers or essay on UN reforms, which is a very important topic for your examination। ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਲਿਖ ਕੇ ਰੱਖ ਲਓ ਸਾਈਡ ਤੇ, ਟੌਪਿਕ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਵੀ ਚੁੱਕੇ ਅਰਲੀਅਰ ਡਿਸਕਸ਼ਨਸ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਰਿਫਾਰਮਸ, ਇਹਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ, राइट? अगर तुसी कंपाइलेशनस देखोगे पिछले मंथ्स दिया, यू विल गैट दी डिटेल्स ऑल्सो, तो ये क्वेश्चन आना बहुत हाईली प्रॉबेबल है, राइट? ये स्टेटमेंट आप ऐड कर लाँगे अपने नोट्स च ताकि आंसर्स नू होर इंपैक्टफुल बनाया जा सके, राइट? दैन सेकेंड टॉपिक, इसरो लाइकली टू लॉन्च चंद्रयान 3। चंद्रयान क्या है, चंद्रयान 3 क्या है, ये बारे देख लवांगे, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर साइंस एंड टैक्नोलॉजी सैक्शन। then UN ਦੀ ਨਵੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਹੈ that how climate change is creating preterm births, right? So you know 9 months ਦਾ normal gestation period ਹੁੰਦਾ ਹੈ for babies to be born in human, but because of climate change the report is saying the babies are getting born much earlier। ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖ ਕੇ ਰੱਖਾਂਗੇ, climate change ਦੇ ਟੌਪਿਕ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਹ ਕੰਮ ਆਏਗਾ, ਇਹ ਡਾਟਾ ਤੇ ਇਹ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ, ਰਾਈਟ? ਦੈਨ ਸੈਕਸ਼ਨ 144 ਇਨ ਗੁਹਾਟੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਸੈਕਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਲਈ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਵੀ ਕੈਨ ਯੂਜ਼ ਇਟ ਇਨ ਆਰ ਆਂਸਰਸ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੋਲਵਿੰਗ, ਕੇਸ ਸਟੱਡੀ ਦੇ ਆਂਸਰਸ 'ਚ ਕਾਫੀ ਕੰਮ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵਾਈ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਬਰੀਫਲੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੀ। ਦੈਨ ਨੈਕਸਟ ਟੌਪਿਕ, ਇੰਡੀਆ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਜੁਆਇੰਟ ਡਰਿਲ, ਜੁਆਇੰਟ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇਖ ਲਵਾਂਗੇ। ਪ੍ਰੀਲਿਮਸ ਲਈ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਮੇਨਸ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ, ਇੰਡੀਆ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ ਲਈ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਰਾਈਟ? ਦੈਨ ਫਿਜੀ ਐਂਡ ਪਾਪਾ ਨਿਊ ਗਿਨੀ, ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਮੋਦੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਪੈਸੀਫਿਕ ਆਈਲੈਂਡ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੀ ਵਿਜ਼ਿਟ 'ਤੇ ਗਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਐਂਡ ਦੇਅਰ ਹੀ ਇਜ਼ ਮੀਟਿੰਗ all the small nations, island nations of Pacific, and Fiji and Papua New Guinea are two of those countries, and ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੇ ਹਾਈਐਸਟ ਆਨਰਸ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ 'ਤੇ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਹਾਈਲੀ ਪ੍ਰੋਬੇਬਲ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਟਾਈਪਸ ਇਹ ਅਵਾਰਡਸ ਆਨਰਸ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਏ ਨੇ ਤਾਂ ਰਿਪੀਟ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਲਵਾਂਗੇ। ਲੰਪ ਸਕਿਨ ਡਿਸੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ, ਮਾਰਚ ਦੀ ਕੰਪਾਈਲੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜੂਗੀ, ਆਈ ਵਿਲ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਦ ਲਿੰਕ ਟੂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਆਲਸੋ। Then again climate change, the second impact on social life only, how it is creating increasing deaths, how it is increasing costs of the economies। ਇਹ ਤੇ ਡਾਟਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਲਿਖ ਲਵਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਆਨਸਰਸ 'ਚ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਫਾਈਨਲੀ ਪੈਸੀਫਿਕ ਆਈਲੈਂਡਸ ਲਈ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕੁਛ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖ ਲਵਾਂਗੇ, ਰਾਈਟ? ਲੈਟਸ ਸਟਾਰਟ ਵਿਦ ਦ ਫਰਸਟ ਟੌਪਿਕ, UN will remain a talk shop। ਦੇਖੋ UN ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਏਜੰਸੀ ਹੈ ਪੀਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਲਈ, ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਨੂੰ ਸੇਫਗਾਰਡ ਕਰਨ ਲਈ, ਬਟ ਓਵਰ ਦੀ ਪੀਰੀਅਡ ਆਫ ਟਾਈਮ ਇਹ 1945 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣੀ ਸੀ। ਵਰਲਡ ਵਾਰ 2 ਦੇ ਅੰਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿਸ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਵਾਸ ਸੈਟ ਅਪ ਟੂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਪੀਸ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਸਪੈਰਿਟੀ ਟੂ ਦੀ ਵਰਲਡ, and since then it has been following the same structure, same rules and regulations, right? So now what countries are saying कि 1945 तो बाद दुनिया काफ़ी बदल चुकी है। You see India is a major power now, Japan is a major power, Germany is a major power, ਇਹ ਵਾਲੀ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਸੀਆਂ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਹਾਰ ਗਈਆਂ ਸੀ ਵਰਲਡ ਵਾਰ 2, ਤਾਂ ਇਸੇ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਿਕਗਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ UN ਵਿੱਚ। ਐਂਡ ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਇੰਡੀਆ ਇਜ਼ ਨਾਓ ਅ ਗਰੋਇੰਗ ਇਕੋਨਮੀ, ਥਰਡ 'ਤੇ ਆਲਰੇਡੀ ਹੈ PPP ਟਰਮਸ ਵਿੱਚ, ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਹਾਈਐਸਟ ਹੈ ਵਰਲਡ ਦੀ, ਰਾਈਟ? ਸੋ ਫॉर ਵੇਰੀਅਸ ਰੀਜ਼ਨਸ these countries wants reform in UN, right? And the reforms are not happening। ਤਾਂ ਇਸੇ ਲਈ ਇਸੇ ਕੰਟੈਕਸਟ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਹਾ ਹੈ कि if we do not bring out reforms in UN or United Nations Security Council, then it will merely be a talk shop। ਇਹ ਸਿਰਫ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ, ਇਹਦੇ ਕੁਛ ਇਫੈਕਟਿਵ ਆਊਟਕਮਸ ਜਾਂ ਕੌਨਸੀਕੁਐਂਸਿਸ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਨੇ ਹੈ, ਰਾਈਟ? ਸੋ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਲਰਨ ਦਿਸ ਟਰਮ ਜੋ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਟਾਕ ਸ਼ਾਪ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਕੀ ਟਰਮ। ਤੁਸੀਂ PM ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖ ਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਟਰਮਨੋਲੋਜੀ ਆਂਸਰ ਵਿੱਚ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰੋਗੇ ਜਦ UN ਰਿਫਾਰਮ 'ਤੇ ਆਂਸਰ ਆਏਗਾ, ਇਟ ਵਿਲ ਫੈਚ ਯੂ ਮਚ ਮੋਰ ਮਾਰਕਸ ਦੈਨ ਦੀ ਨੋਰਮਲ ਆਂਸਰਸ,
ठीक है। इसे तरीके नाल UN ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੈਕਟਰੀ ਜਨਰਲ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਐਂਟੋਨੀਓ ਗੁਟਾਰਸ ਕਰੰਟਲੀ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦਿਸ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆਲਸੋ ਯੂ ਕੈਨ ਯੂਜ਼ ਇਨ ਯੋਰ ਆਨਸਰਸ। ਵਾਟ ਇਜ਼ ਹੀ ਸੇਇੰਗ that the Security Council reflects the 1945 power relations। 1945 ਚ ਜੋ prominent countries ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ USA, UK, France, Russia ਜਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ USSR ਸੀ, they were the powers at that time and they are getting permanent membership in UN today। But this person says, Secretary General says that now the reality has changed, many things have changed since 1945। there is growing conscience that not enough is being done to reform outdated institutions। ठीक है, ये कह रहे हैं कि ये outdated institutions, ये outdated structures ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ change ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ because much has changed since 1945 right। again ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਟਰਮੀਨੋਲੋਜੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਨਸਰਸ 'ਚ। ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਆਪਦੇ ਕੋਲ ਲਿਖ ਕੇ ਰੱਖੋ UN ਰਿਫੋਰਮਸ ਦੇ ਟੌਪਿਕ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਆਵੇ ਉਸ 'ਚ ਟਰਾਈ ਟੂ ਰਾਈਟ ਇਟ ਇਨ ਦੀ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਔਰ ਇਨ ਦੀ ਕਨਕਲੂਜਨ ਪਾਰਟ ਔਰ ਬੋਥ ਰਾਈਟ। ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ PM ਮੋਦੀ ਦੀ ਲਿਖਤੀ, ਸੈਕਿੰਡ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਗੁਟਾਰਸ ਦੀ ਰਾਈਟ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਆਲ ਦ ਫੈਕਚੁਅਲ ਥਿੰਗਸ ਦੈਟ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਲਰਨ ਇਫ ਯੂ ਵਾਂਟ ਟੂ ਗੈਟ more and more marks। second topic, ISRO likely to launch Chandrayaan mission। ISRO ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਸਪੇਸ ਏਜੰਸੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਸੈਟਲਾਈਟਸ ਤੇ ਮਿਸ਼ਨਸ ਇਹ ਭੇਜਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਸਪੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮਿਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਮੂਨ ਤੇ ਭੇਜੇ ਹੈ ਦੇ ਆਰ ਕਾਲਡ ਐਜ਼ ਲੂਨਰ ਮਿਸ਼ਨਸ, ਲੂਨਰ ਮੂਨ ਮਿਸ਼ਨਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਐਂਡ ਮੂਨ ਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਸਾਡਾ ਨਾਮ ਹੈ ਚੰਦਰਯਾਨ ਰਾਈਟ। ਹੁਣ ਚੰਦਰਯਾਨ 3 ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਹਜੇ ਤੱਕ, ਤੀਸਰਾ ਮਤਲਬ ਲਾਂਚ ਹੋਣਾ ਹੈ, 2 ਆਲਰੇਡੀ ਲਾਂਚ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਸੋ ਚੰਦਰਯਾਨ 1, ਚੰਦਰਯਾਨ 2, ਚੰਦਰਯਾਨ 3 ਇਹ 3 ਮੂਨ ਮਿਸ਼ਨਸ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਦੇ। 3 ਇਜ਼ ਯੈਟ ਟੂ ਬੀ ਲਾਂਚਡ, ਬਾਕੀ ਦੋਨੋਂ ਲਾਂਚ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਰਾਈਟ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮਿਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਲੈਟਸ ਸੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੂਨ ਤੇ ਮਿਸ਼ਨ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਲੈਟਸ ਸੇ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਮੂਨ ਰਾਈਟ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮਿਸ਼ਨ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਆਪਣਾ, ਦੇਰ ਕੈਨ ਬੀ 3 ਥਿੰਗਸ ਔਰ 3 ਕਾइंड ऑफ पेलोड्स दैट वी कैन सेंड। फर्स्ट है कि ऑर्बिटर, फर्स्ट है ऑर्बिटर, मतलब ऑर्बिटर क्या ਹੁੰਦਾ है, ਮੂਨ ਦੇ ਅਰਾਊਂਡ ਇਹ ਘੁੰਮੇਗਾ, ਦੂਰੋਂ ਸਾਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਕੈਚ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਏਅਰ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਕਿਆ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਨੂੰ ਕੈਪਚਰ ਕਰਕੇ ਇਟ ਵਿਲ ਕੀਪ ਸੈਂਡਿੰਗ ਅਸ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ। ऑर्बिटर मतलब मून दे अराउंड घूमता रहेगा तो इनफॉर्मेशन गैदर करके अर्थ से वापस भेजता रहेगा राइट। लैंडर क्या हुंदा है, नाउ दिस इज़ मून, लेट्स से दिस इज़ मून, ये मून दा सरफेस है राइट। तो जेड़ा इंस्ट्रूमेंट मून दे सरफेस ते जाके खड़ेगा इस तरीके नाल एंड मून दे सरफेस ते खड़ के इनफॉर्मेशन गैदर करेगा, उन्होंने लैंडर कहते हैं। ठीक है जी, मून दे सरफेस ते खड़ के उत्थे सारी इनफॉर्मेशन इकट्ठी कर रहा है, सॉइल नू चैक कर सकता है, वाटर ट्रेसिस नू चैक कर सकता है, गैसेस नू चैक कर सकता है, किहड़ी गैसेस प्रेजेंट है कितनी क्वांटिटी, ऑल दैट स्टफ दैट इट कैन डू वाइल स्टैंडिंग ऑन द सरफेस ऑफ द मून, दैट इज़ वॉट इज़ लैंडर राइट। ਹੁਣ थर्ड कैटेगरी क्या होंगी है, रोवर, कि ये सिर्फ खड़ा ही नहीं रहूगा बट इट कैन मूव ऑल्सो, स्लोली स्लोली इट कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, इस तरीके नाल पूरा सरफेस ट्रैवर्स कर सकता है तो होर भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन कलैक्ट कर सकता है, दैट इज़ दी रोवर। ठीक है जी, आई होप कि तीनों टर्म्स समझ आ गया होंगे, ऑर्बिटर, रैंडर, लैंडर ते रोवर। ठीक है, ये 3 टाइप के ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਆਪਣੇ ਮਿਸ਼ਨਸ। ਤਾਂ ਚੰਦਰਯਾਨ 1 ਚ ਆਪਣਾ ऑर्बिटर ਤੇ ਲੈਂਡਰ ਗਿਆ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਚੰਦਰਯਾਨ 2 ਚ ਆਪਾਂ ਤਿੰਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਭੇਜੀਆਂ ਸੀ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਫੇਮਸ ਮਿਸ਼ਨ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਮੋਦੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਇਸਰੋ ਦੇ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਪਰਸਨਲੀ ਵਿਟਨੈਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਲਾਂਚ, ਲੈਂਡਰ ਦੀ लैंडिंग ऑन दी मून बहुत डिफिकल्ट होंगी है, काफ़ी ज़्यादा सुपीरियर टैक्नोलॉजी चाहिए है सॉफ्ट लैंडिंग कराने लई, तो उदों अपना लैंडर जिहड़ा फेल हो गया सी। इसे लिए कॉन्सिक्वेंटली इसरो ने डिक्लेयर किया सी दैट दे विल ट्राई 3rd टाइम टू सॉफ्ट लैंड द मिशन ओवर द मून। ठीक है जी, तो इसलिए हुण चंद्रयान 3 मिशन जिहड़ा है मून ते भेजा जाएगा, जिहदे विच लैंडर ते रोवर होणगे मेनली, एंड दे विल प्रोवाइड अस ऑल द इन्फॉर्मेशन विद रिगार्ड टू मून। ठीक है, ये मिशन दा लाइफ लाइन कितनी होएगी, 1 लूनर डे विच इज़ इक्वलेंट टू 14 डेज ऑफ अर्थ, 14 दिन का मतलब ਇਹਦਾ लाइफ टाइम होगा 14 अर्थ डेज का। ठीक है जी, GSLV Mark 3 will launch it, as I have already told you about all the launch vehicles, ਜਿਹੜੇ heavy
ਜਿਹੜੇ ਮਿਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੇ ਆ they require lot of force and propulsion and that is why they use the most advanced launcher that is GSLV Mark 3 right। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਲੈਂਡ ਹੋਏਗਾ ਲੂਨਰ ਸਾਊਥ ਪੋਲ ਤੇ on August 23 that is what is being proposed right। ਲੈਟਸ ਸੀ ਕਿ ਅੱਗੇ क्या ਹੁੰਦਾ है बट ये बेसिक इन्फॉर्मेशन याद रखो। चंद्रयान इज रिलेटेड टू मून, ऑर्बिटर लैंडर रोवर क्या होंगे ने, 3 विच क्या है, 2 विच क्या है, ट्राई टू रिमेंबर इट। कंपैरिजन बेसिस पे प्रीलिम्स च क्वेश्चन आ सकता है राइट। नेक्स्ट हाईएस्ट प्री टर्म बर्थ्स इन इंडिया UN रिपोर्ट राइट, यानी कि प्री टर्म मतलब टाइम तो पहला जोड़े बच्चे हो रहे ने राइट। देखो ये रिपोर्ट क्या कह रही है, रिपोर्ट का नाम है बॉर्न टू सून डिकेड ऑफ एक्शन ऑन प्री टर्म बर्थ्स राइट। ये WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ते यूनिसेफ ने मिलके यह रिपोर्ट जारी की है इन विच दे आर सेइंग कि जिहड़ा नॉर्मल पीरीयड हुंदा है उस तो पहला बच्चे जिहड़े है पैदा हो रहे ने एंड दिस इज़ हैपनिंग बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज, एयर पोल्यूशन, राइजिंग हीट, राइजिंग टैंपरेचर एंड ऑल दोज आस्पैक्ट्स ठीक है। तो आप इनू सोशल इंपैक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज विच यूज़ कर सकते हैं दैट प्री टर्म बर्थ्स आर इंक्रीजिंग एंड दे आर ऑल्सो लीडिंग टू डेथ्स ऑल्सो राइट। द रिपोर्ट सेज 91% ऑफ डेथ्स ऑफ प्री टर्म बेबीज़ वर रिलेटेड टू एयर पोल्यूशन ठीक है। 90% ਜਿਹੜੇ जल्दी जम्मे बच्चे है वो मर भी गए सी एंड दैट टू बिकॉज ऑफ एयर पोल्यूशन ठीक है। उस तो बाद ये रिपोर्ट कहती है कि प्री टर्म बर्थ का रिस्क 52% बढ़ जाता है एस्थमैटिक मदर्स च। एस्थमा इज़ मेनली बिकॉज ऑफ एयर पोल्यूशन एंड ऑल राइट। सो मतलब इरेगुलर एयर होने नाल प्री टर्म बर्थ होने की रिस्क प्रोबेबिलिटी 52% बढ़ जाती है। अगर हीट टैंपरेचर ज़्यादा हो, हीट एक्सपोजर ना 16% पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है जल्दी बर्थ होने की, टाइम तो पहला बर्थ होने की राइट। सो दिस इज़ शोइंग अस दैट हाउ क्लाइमेट चेंज, राइजिंग टेम्परेचर्स is causing preterm births which are not a healthy phenomena। टाइम ते ही बच्चा होना चाहिए है। preterm births face lot of complications, many of them die also and they are not very healthy babies। so इसीलिए you can say social impacts of climate change are high level of preterm births right। एक conclusion जड़ी है इस डाटा चो interpretation लिख के रखो, you can use it in your essays or answers of climate change। next सैक्शन 144 राइट। हुण मैं इत्थे सिर्फ सैक्शन 144 वैसे तो सबनों पता होगा, ये उदों लगाया जाता है जब भी आपां नूं कोई इनस्टेबिलिटी लग रही होंदी है कि पीस नूं थ्रैटन कर सकती है, एक जगह ते समझ लो दंगे हो सकते हैं, राइट हो सकता है, लड़ाई हो सकती है। तो उस टाइम ते एडमिनिस्ट्रेशन जिहड़ी है सैक्शन 144 लगा सकती है स्टेटिंग दैट 4 or more peoples cannot gather or stand at one place right। this becomes very important at some places when we want to maintain peace and avoid riots or dange right। so ਇਹਦਾ ਇੱਥੇ यूटिलाइजेशन क्या है, प्रॉब्लम सॉल्विंग ਦੇ क्वेश्चन च ਸਾਨੂੰ केस स्टडी आ सकती है। there can be some situation where it can be said कि इस तरीके नाल रॉयट होने की संभावना है तो तुसी एज अ DSP क्या करोगे लेट्स से। तो उस जो तुसी आंसर लिख रहे होंगे बिकॉज यू आर अ पुलिस ऑफिसर यूज सम टेक्निकल टर्मिनोलॉजी जिमें कि सैक्शन 144 ऑफ IPC यू कैन से दैट आई यूज सैक्शन 144 टू अवॉइड टू प्रिवेंट द असेंबली ऑफ पीपल दैट कैन इन टर्न बी हेल्पफुल इन अवॉइडिंग राइट लाइक सिचुएशन ठीक है। सो इत्थे मैं सिर्फ यही हाईलाइट करना चाहनी हाँ दैट दिस इज़ हाउ यू गेट मोर मार्क्स in answers when you write some factual data like this section that you can mention here that is relevant right। CRPC दा section 144 आई थिंक मैंने पहला IPC कह दिता सी, IPC दा नहीं है ये, CRPC दा है कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर या क्रिमिनल कोड राइट। उस दा section 144 you will use ठीक है। बट ओनली रीजनेबली यूज़ करना है क्योंकि अपना कॉन्स्टिट्यूशन आपां नूं फंडामेंटल राइट दिंदा है फ्री मूवमेंट दा, फ्रीडम दा, मूवमेंट दा, एक्सप्रैशन दा। सो यू कैन यूज़ ओनली वैन इट इज़ लेजिटिमेटली जस्टिफाइड टू यूज़ सैक्शन 144। तो आंसर्स च जदों ये लिख रहे हो मेक श्योर दैट देर इज़ एब्सोल्यूटली नो अदर ऑप्शन लैफ्ट वैन यू वॉन्ट टू यूज़ दिस सैक्शन
ठीक है, लास्ट ते ही लिख सकते हो कि अगर प्रॉब्लम इन्नी वध जाती है दैट इट इज़ आउट ऑफ कंट्रोल, दैट टाइम यू विल अप्लाई दिस सैक्शन 144, राइट। नैक्सट न्यूज़ आइटम है इंडिया इंडोनेशिया की जॉइंट ड्रिल हो रही है। अगैन बहुत सारी एक्सरसाइजिज होंदियां रहंदियां, वी कीप डिस्कसिंग। इस तो पहला आप इंडिया आसियान एक्सरसाइज भी की सी विच वॉज गेटिंग कंडक्टेड इन साउथ चाइना सी। अगैन उसे रीजन करके दैट चाइना इज़ बिकमिंग मोर एंड मोर एग्रैसिव, तो छोटी कंट्रीज़ नू इट इज़ नॉट अलाउिंग एनी राइट्स इन दिस साउथ चाइना सी, एंड दैट इज़ वाई दीज कंट्रीज़ आर कमिंग टुगैदर विद इंडिया and conducting such exercises so that they can assert themselves militarily in this area। तो हुण इंडिया इंडोनेशिया भी समुद्र शक्ति नाम की एक्सरसाइज कर रहे हैं। ये एक्सरसाइज का नाम याद रखो, प्रीलिम्स च आ सकता है एंड ईवन मेन्स च तुसी इंडिया इंडोनेशिया के रिलेशनस च यूज़ कर सकते हो, राइट। तो सैकेंड फैक्ट ये याद रखना है कि दिस इज़ द सैकेंड सच एक्सरसाइज दैट इंडिया इज़ कंडक्टिंग इन साउथ चाइना सी। इस तो पहला इंडिया इंडोनेशिया आई मीन इंडिया आसियान की एक्सरसाइज हुई सी, एंड नाउ इंडिया इंडोनेशिया की एक्सरसाइज साउथ चाइना सी च हो रही है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट जियो स्ट्रैटेजिकली तुसी कह सकते हो, अगर तुहानू साउथ चाइना सी ते कोई क्वेश्चन आ जाता है, वॉट मेजर्स इंडिया इज़ टेकिंग टू सेफ गार्ड इट्स इंटरस्ट और काउंटर चेक चाइनीज़ इन्फ्लुएंस इन साउथ चाइना सी, यू कैन ऑलवेज राइट वन एग्जाम्पल दैट इट इज़ होल्डिंग जॉइंट ड्रिल्स, जॉइंट मिलिट्री प्रिपेयर्डनेस एक्सरसाइजेज विद दी कंट्रीज स्मॉलर नेशंस ऑफ साउथ चाइना सी। फॉर एग्जाम्पल इंडिया आसियान एक्सरसाइज और इंडिया इंडोनेशिया एक्सरसाइज समुद्र शक्ति, राइट, दैट इज़ हाउ यू विल यूज़ इट। नैक्सट न्यूज़ आइटम फिजी पपा न्यू गिनी कॉन्फर हाईएस्ट ओनर्स टू PM मोदी। उन्होंने देश का जोड़ा सारे नालों हाईएस्ट अवार्ड है उन्होंने PM मोदी को दिता है, जिमें फिजी ने दिता है ऑर्डर ऑफ फिजी अवार्ड, राइट। पपा न्यू गिनी ने क्या दिता है, ऑर्डर ऑफ लगहो अवार्ड, ठीक है। इनू याद रखो क्योंकि इस तो नाम ही है कंट्री का, ये लैस लाइकली है पूछा जाए, बट लगोहो पूछा जा सकता है बिकॉज ये तो बिल्कुल भी नहीं पता चल रहा कि ये किहड़ी कंट्री का हो सकता है, राइट। तो इनू याद रखो, ये हाई प्रोबेबिलिटी है पूछी जाने की। इस तो इलावा भी प्राइम मिनिस्टर मोदी नू काफ़ी सारे स्टेट दे हाईएस्ट ऑर्डर्स मिले ने, साउदी अरेबिया होवे, अफगानिस्तान होवे, पैलेस्तीन हो, UAE हो, रशिया होवे, बहुत सारी कंट्रीज़ ने हाईएस्ट ऑफ द ऑनर्स जोड़े है प्राइम मिनिस्टर मोदी नू डेडिकेट किते ने। सो यू कैन रीड गो थ्रू दिस लिस्ट ऑल्सो, कई बार लिस्ट या मैच द फॉलोइंग च आ सकते हैं, सो जस्ट गो थ्रू इट। इंटरनेशनल एजेंसीज़ ने भी काफ़ी अवार्ड दिते हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी नू, जिमें कि दिस वॉज वेरी इंपॉर्टेंट, इस ते UPSC च क्वेश्चन भी आया सी, राइट। चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड, तो आई थिंक UAE वाले ते PPSC विच क्वेश्चन आया सी। तो इसीलिए गो थ्रू ऑल ऑफ दीज अवार्ड्स, सिर्फ एक बार पढ़ना है, थोड़ा याद रहेगा तो अनू आइडिया रहेगा। पापा नी गिनी वाला लेटेस्ट है तो वो हाई प्रोबेबिलिटी है, राइट। जस्ट चेक द PDF एंड ट्राई टू रिमेंबर ऑल दीज अवार्ड्स। उस तो बाद लंप स्किन डिसीज़ अगैन न्यूज़ च है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पहला भी 3-4 बार न्यूज़ च आ चुकी है। तो प्रीलिम्स का छोटा जिहा क्वेश्चन तो प्रोबेबली बन ही सकता है कि यह फंगल डिसीज़ है कि बैक्टीरियल डिसीज़ है, प्रोटोजोन ने कंडक्ट होंगी है या वायरल डिसीज़ है। यू विल टेल मी इन द कमेंट सेक्शन बिकॉज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इट दैट लंप स्किन डिसीज़ केड़ा एलिमेंट क्रिएट करता है, वायरस, बैक्टीरिया, फंगाई और प्रोटोजो, राइट। बाकी जिन्हों भी डिटेल चाहिए मार्च कंपाइलेशन च मिल जाएगी, या 21 मार्च की वीडियो डिस्कशन भी तुसी देख सकते हो, राइट। नैक्सट टॉपिक अगैन क्लाइमेट चेंज का इंपैक्ट दस्या जा रहा है। UN की रिपोर्ट आई है एक होर विच इज़ टेलिंग अस द इंपैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज। सो ये टेबल तुसी याद रखना है। अकॉर्डिंग टू दिस UN रिपोर्ट बिटवीन 1970 टू 2021 अगर आप देखिए, इंडिया ने ऑलमोस्ट 573 डिजास्टर्स विटनेस किते हैं, राइट, जिदे करके डेथ्स जड़ियाँ हैं 1.38 लाख दे नेड़े हुई हैं, राइट। उस तो बाद अगर ग्लोबली तुसी देखो तो ऑलमोस्ट 12,000, इनू राउंड ऑफ करके याद कर सकते हैं, ठीक है। एग्जैक्ट फिगर्स याद करने की लौड़ नहीं, इत्थे 12,000 याद करो, इत्थे 600 याद करो, ईजी टू रिमेंबर ऑल्सो 600 12,000, राइट। तो इत्थे 2 मिलियन डेथ्स जड़ियाँ हुई हैं, राइट। सो इत्थे तुसी अराउंड 2 लाख याद कर लो, इत्थे
20 लाख, 2 मिलियन का मतलब 20 लाख, ठीक है। ईजी टू रिमेंबर डाटा। सो इस तरीके नाल तुसी याद कर सकते हो दैट हाउ क्लाइमेट चेंज इज इंक्रीजिंग दी डिजास्टर्स, दी डेथ रेट्स एंड दी कॉस्ट ऑल्सो। वर्ल्ड ओवर देखो तो $4.3 ट्रिलियन की कॉस्ट भरनी पई है कंट्रीज़ नूं मिल के बिकॉज ऑफ दिस डिजास्टर्स, है ना। खुद देखो जब भी कोई डिजास्टर आता है, डिजास्टर का क्या मतलब है, फ्लडिंग आ गई, ड्रॉट आ गया या लैंडस्लाइड हो गई, ठीक है। तो इस नाल की हो साडा सारा इंफ्रास्ट्रक्चर खराब हो जाता है। ड्रॉट नाल की हो तो सारी एग्रीकल्चर का नाश हो जाना है। लैंडस्लाइड नाल क्या होएगा, बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर अगेन डिसरप्ट हो जाना है, टूरिज्म बंद हो जाना है कई एरियाज़ का, ठीक है। तो इस इंटायर चीज़ा का क्यूमुलेटिव इकोनॉमिक इंपैक्ट इन्ना ज़्यादा हो रहा है बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज, राइट। सो अगेन सोशल इकोनॉमिक सेंस बनती है कि सानू क्लाइमेट चेंज होने तो रोकना चाहिए है या उहदा इंपैक्ट जिहड़ा है घट तो घट करन दी कोशिश करनी चाहिए है, राइट। दैट इज़ वॉट दिस सेज। ये टेबल बना के रखो, काफ़ी काम आएगा तुहाडे आंसर्स लिखण च। लास्ट टॉपिक ऑफ टुडे 12 पॉइंट प्लान फॉर पैसिफिक आइलैंड्स, ठीक है। पैसिफिक आइलैंड्स जिवें कि मैं तुहानूं दस्सिया कि बैक टू बैक हुण 2-3 दिनों विच ही प्राइम मिनिस्टर मोदी अलॉन्ग विद US दे लीडरशिप दे आर मीटिंग दी लीडरशिप ऑफ पैसिफिक आइलैंड नेशनस, ठीक है। पैसिफिक जिहड़ा बहुत बड़ा ओशियन है, उस छोटे छोटे इंडिपेंडेंट आइलैंड्स है, सोवरन आइलैंड्स है, उन्हां नाल आपां ट्रीटी डील्स डिस्कशनस कर रहे हैं बिकॉज चाइना इज़ इंक्रीजिंगली एजर्टिंग इट्स इन्फ्लुएंस ओवर दिस पैसिफिक आइलैंड नेशनस, ठीक है। छोटे छोटे कंट्रीज़ है, इन्हों बहुत सारा पैसा चाहिए है स्पैशली क्लाइमेट चेंज की वजह तो, क्योंकि रिस्क बहुत बढ़ गया है, पानी का लैवल बढ़ रहा है, ये कंट्रीज़ डुब रही हैं, ठीक है। सिर्फ यही नहीं, बहुत सारे आपदी हैल्थ सैक्टर लई, आपदे स्कूलिंग एजुकेशन सैक्टर लई, सोशल डेवलपमेंट लई, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट लई ये कंट्रीज़ नूं काफ़ी सारा पैसा चाहिए है। एंड चाइना इज़ अ बिग money master and it is using its debt trap diplomacy, right? I hope you know debt trap diplomacy to enslave, you can say, independent nations। ये नवी न्यू कॉलोनिज्म का टाइप है, किमें पैसा दे दे के इन कंट्रीज़ नूं आपदे अधीन लैके आना चाह रही हैं, ठीक है। इसी चीज़ नूं बचन लई, इसी चीज़ का इंपैक्ट घटाने लई, चाइना का इन्फ्लुएंस ऑन दीज कंट्रीज़ घटाने लई US एंड इंडिया आर नाउ होल्डिंग back-to-back talks with Pacific Island nations that you do not need to take predatory funding from China, rather we will help you in all your requirements, so sit with us and talk with us। and that is why Prime Minister Modi ने 12 point action plan launch किया है इन countries ਲਈ, that we will help you in all the sectors that you need, that you require, जिमें कि हो गया health care, हो गया cyber security, हो गया education, हो गया, राइट। जयपुर फुट कैंप अगेन हेल्थ नाल रिलेटेड है, सोलर प्रोजेक्ट्स हो गए, वाटर मैनेजमेंट हो गया। इस तरीके नाल डिफरेंट एरियाज इंडिया विल ट्राई टू होल्ड हैंड्स ऑफ पैसिफिक आइलैंड कंट्रीज एंड प्रिवेंट दी राइजिंग चाइनीज़ इन्फ्लुएंस ऑन दिस कंट्रीज, राइट, ठीक है। इसलिए यह बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ आइटम है, इनू लिख के रखो अलग तो। इंडो पैसिफिक के क्वेश्चनस च भी तुसी इनू एज अ पॉइंट यूज़ कर सकते हो दैट इंडिया इज़ ट्राइंग टू इंगेज विद पैसिफिक आइलैंड कंट्रीज़ थ्रू इट्स 12 पॉइंट एक्शन प्लान, राइट। दैट इज़ हाउ यू विल यूज़ दिस न्यूज़ आइटम। चाइना नू किवें काउंटर कर रहा है, चाइना का इन्फ्लुएंस इंडो पैसिफिक च किवें काउंटर कर रहा है, एवरीवेयर यू कैन यूज़ दिस। देयर आर मैनी अदर इनिशिएटिव, तुसी मैनू कमेंट सैक्शनस भी दसोगे। इंडो पैसिफिक विच चाइनीज़ इन्फ्लुएंस नू काउंटर चैक करन लई इंडिया ने बहुत सारे मैशर्स लिते हैं, कुछ मैं दस दी हैं तुहानू। क्वाड हो गया, राइट, ऑर्गेनाइजेशनल इंडो पैसिफिक इकनॉमिक फोरम, वेरी इंपॉर्टेंट, लेटेस्ट रिलीज़ हुई सी, राइट। अज ही आप डिस्कस किया है जॉइंट ड्रिल्स, जॉइंट मिलिटरी ड्रिल्स विद साउथ चाइना सी कंट्रीज़ और आसियान कंट्रीज़, राइट। एंड इस तो इलावा पैसिफिक आइलैंड कंट्रीज़ नाल कोऑपरेशन जिहड़ी आपां देखी टू रिड्यूस देयर डिपेंडेंसी ऑन चाइना। इस तरीके नाल होर बहुत सारे इनिशिएटिव इंडिया ने लिते हैं टू रिड्यूस चाइनाज इन्फ्लुएंस इन द इंडो पैसिफिक रीजन। एंड यू विल टेल मी इन द कमेंट सेक्शन व्हाट अदर मेजर्स इंडिया हैज़ टेकन टू काउंटर चेक चाइनीज़ इन्फ्लुएंस इन इंडो पैसिफिक, बिकॉज इंडो पैसिफिक अगेन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर आर GS2 IR सेक्शन, ठीक है जी। इंडो पैसिफिक दे
टॉपिक विच ये नोट्स जोड़े आ बना के रखो. इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू इन द मेन्स एग्जामिनेशन. आई होप ऑल ऑफ दिस डिस्कशंस आर हेल्पिंग यू. तो कोई भी इशू है रिलेटेड टू प्रीलिम्स, मेन्स, इंटरव्यू, we are there to help you. Just message us at 8837604500. ठीक है जी. ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੋਰਸ ਵੀ ਜਲਦੀ ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਾਂ. ਡੂ ਜੁਆਇਨ ਦੈਟ ਆਲਸੋ. ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਕਵਰ ਹੋਏਗਾ. ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਫਿਰ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਆ ਜਾਏ, you will be able to solve it. Right? That is all for today's discussion. Thank you so much for joining.